کلام کی خدمت کر سکوں. سو بہت شکریہ آپ سب لوگوں کو مل کے دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے. آئے وقت بالکل ضائع کیے بغیر خداوند کے کلام کی طرف چلیں. اس سے پہلے کہ ہم حوالے کی تلاوت کریں آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں. بزرگ آسمانی باپ مسیح یسوع کے نام میں تیرا شکر کرتی ہوں خداوند تو جو ہمیں دور و نزدیک سے بلا لیتا ہے تاکہ تیرے کلام کی خدمت کی جا سکے. خداوند کلام کی کسی بات کی تشریح اور تفسیر انسان کے اختیار کی بات نہیں جب تک کہ تیرا روح القدس اس کی مدد نہ کرے. میں آج اپنے آپ کو تیرے حضور میں پیش کرتی ہوں. تیرا روح القدس مجھے بطور برتن استعمال کرے تاکہ میری اور ان تمام بہن بھائیوں کی کلام میں سے خداوند تقویت ہو سکے. مسیح یسوع کے نام میں. آج صبح خداوند کے کلام میں سے جس حصے پر ہم غور کرنے کو ہیں وہ یوحنا کی انجیل ہے. اگر آپ کے پاس کلام مقدس موجود ہے تو نکال لیجئے. یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 20واں باب چیپٹر 20 اس کی 19ویں آیت سے 23ویں آیت تک ورس 19 سے ورس 23 تک ہم پڑھیں گے. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا یہودیوں سے ڈرے ہوئے تھے. یہودی وہاں پر اکثریت میں موجود تھے. یہ 12 150 200 لوگ جنہوں نے یسوع کی پیروی کی تھی اس کے ساتھ ساتھ یہ اقلیت میں تھے. ان کو اکثریت کا ڈر تھا اور اس ڈر سے یہ کمرے میں بند تھے. تو آج پہلی جو سیکھنے کی بات ہے کہ بطور ایماندار ہماری زندگی میں ڈر کا آ جانا کوئی بڑی بات نہیں مگر اس ڈر کی گرفت اتنی زیادہ ہو جانا کہ ہمیں خدا کا مکاشفہ بھول جائے یہ غلط بات ہے. جب یہ اس بند کمرے میں بیٹھے ہیں اور انہیں لگ رہا ہے ہمیں کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا ایسے میں خداوند کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ یسوع مسیح کہاں آ کر کھڑا ہو گیا. آپ نے پڑھا ہے یسوع مسیح کیا کمرے کے کونے میں آ کے کھڑا ہو گیا. لکھا ہے یسوع مسیح ان کے بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا. اسے دروازہ نوک کرنے کی ضرورت نہیں کسی کا دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں. وہ زندہ تھا مردوں میں سے جی اٹھا تھا جلالی بدن رکھتا تھا. وہ ان کی سچویشن کے این بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا. یہ ہے یسوع مسیح. جب ہم اپنی خوف کی گرفت میں ہیں اپنے فیوچر کو لے کر پریشان ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر پریشان ہیں گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے مسلسل ہماری سوچوں کی قید ہے ہم لوگ کو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں مگر ہمارے اندر ڈر ہے. ایسے میں اچھی خبر یہ ہے وہ یسوع جس کے بارے میں وہ سوچ رہے تھے کہ وہ ابھی بھی قبر میں پڑا ہوا ہے وہ عین وعدے کے مطابق جی اٹھا اور نہ صرف جی اٹھا بلکہ اس کمرے میں عین بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا تمہاری سلامتی ہو. یسوع مسیح جس گھر میں جس انسان کی زندگی میں جس کلیسیا میں آ جاتا ہے بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے وہاں پر سلامتی آ جاتی ہے. یسوع مسیح کا ہماری سچویشن میں آ جانا سلامتی کو لے آتا ہے اور جہاں پر روشنی ہے وہاں پر تاریکی ٹھہر نہیں سکتی. یسوع مسیح کی کیا کمال اسٹریٹجی ہے. کتے چپ کر کے کونے چ کھلوندا کتے ڈرنا دعا کر دے اکھاں کھول دیاں پتہ لگدا نہ. یسوع مسیح جب آتا ہے دھڑلے سے ہی آتا ہے اینڈ بیچ میں آ کر کھڑا ہوا اور اس نے اپنا آپ ان کو دکھایا. یہ بات کیا اظہار ہے. ڈرو مت. یسوع نے کہا تمہاری سلامتی ہو. یسوع کا پیغام سلامتی کا پیغام ہے. ڈر جاتا رہتا ہے
لکھا ہے, شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہو گئے, او یسوع مسیح آ گیا ہے, مسئلہ حل ہو گیا ہے. اب چاہے اکثریت آ جائے, چاہے گورنمنٹ آ جائے, چاہے ساری سیاست آ جائے, وہ ہم پر کلیم نہیں کر سکتے, کیونکہ اب ان کے پاس زندہ مسیح ہے اور وہ دکھا سکتے ہیں کہ یہ وہ مسیح ہے جس کی ہم نے پیروی کی ہے, یہ وہ مسیح ہے جس کی ہم تعلیم دیتے ہیں. اور جب تک یہ مسیح ہمارے بیچ میں ہے, ہم پر کسی کا زور نہیں چل سکتا. ہم یسوع مسیح میں فاتح لوگ ہیں. آمین. اور خداوند کی سلامتی, یہ جو لفظ ہے نا یہاں پر سلامتی, اس کو عبرانی میں کہتے ہیں جی شالوم. جب یسوع نے کہا نا تمہاری سلامتی ہو, یسوع نے کہا شالوم. اور یہ صرف کوئی سادہ سلامتی نہیں, شالوم خداوند کا اطمینان ہے. خداوند کا وہ اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے. اور آپ جو ایماندار ہیں, میرے خیال سے زندگی میں آپ نے اس کا تجربہ ضرور حاصل کیا ہوگا. خداوند کا اطمینان, ایماندار نے کہا جی ادھی روٹی بھی ہوئے نا وہ بھی شکر گزاری نہ کھا لیں. ایک اطمینان, عجیب اطمینان ہمارے اندر موجود رہتا ہے. ہمیں پتا ہے آج آدھی ہے, کل کو خداوند پوری بھی دے دے گا. آج اگر میرے کاروبار میں گھاٹا ہے, خداوند اس کو بدلنے کی طاقت بھی رکھتا ہے. خداوند کا اطمینان دنیا کی طرح کا نہیں ہے. میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں, یوحنا کی انجیل میں ہی ہے 14واں باب. آئیں دیکھیں کیسا اطمینان ہے. خداوند کا اطمینان کس طرح سے فرق اطمینان ہے. 14واں باب اس کی 27ویں آیت لکھا ہے کہ یسوع مسیح تعلیم دے رہا تھا مصلوب ہونے سے پہلے, اور شاگردوں کو کہتا ہے میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں, اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں. مائی پرسنل شالوم, میرا ذاتی اطمینان, خدا کا اطمینان. جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا. تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے. تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا کہ جاتا ہوں اور تمہارے پاس پھر آتا ہوں. اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو اس بات سے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں خوش ہوتے, کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے. یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے, یسوع مسیح نے ایک موازنہ کیا ہے. وہ کہتا ہے میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں, دنیا کے جیسا اطمینان نہیں دیتا. تو پھر اس کا مطلب ہے جو اطمینان دنیا دیتی ہے وہ خدا کے اطمینان سے مختلف ہے. دنیا کا اطمینان کیسا ہے؟ ورلڈلی پیس. کیسا اطمینان ہے؟ جب حالات اچھے ہونا انسان کے, وہ تو سارے وہ نال او باجی بڑا اچھا چل رہا, سب ٹھیک ہے, ٹھیک ہو جائے گا. ذرا جو انسان تے کرائسس آئے نا, ہولی ہولی دنیا چھڑ جانی. جہے کوئی 2 3 4 قریبی ہوندے نے وہ بھی کہیں گے فکر نہ کرو ٹھیک ہو جائے گا, فکر نہ کرو ٹھیک ہو جائے گا. پلےوں کوئی کچھ نہیں دینا, بس گلی باتی اطمینان. مگر خدا کا اطمینان ایسا نہیں ہے. خداوند کا اطمینان انسان کی سمجھ سے باہر ہے. خداوند کا اطمینان جو یسوع مسیح میں ہے وہ ابدی امید ہے. کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے, یسوع نے کہا ڈرو مت, میں ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں. اگر تم روپے پیسے کی فکر میں ہو, یہ سوچتے ہو ہم کیا پہنیں گے, ہم کیا کریں گے, تو کیا تمہاری قدر چڑیوں سے زیادہ نہیں؟ اگر میں چڑی کو بغیر کھیت بوئے سب کچھ دیتا ہوں تو تم تو ان سے کہیں زیادہ
कीमती हो। क्या मैं तुम्हारी फिक्र ना करूंगा? खुदा को तो पत्थर में रहने वाले कीड़े की भी फिक्र है। तो मेरे अजीजों, आपकी और मेरी कदरों कीमत तो चिड़ियों से, जानवरों से कहीं ज्यादा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि खुदा खुद मुजस्सम होकर आया। उसने अपना इकलौता बेटा हमसे दनेग ना किया, तो जिसने अपने बेटे को हमसे बाज ना रखा, वो बाकी चीजें भी हमें क्यों ना देगा। तो जब कभी ताड़ा दिल डोले ना कि हाय हम की होएगा, हमेशा बीच में खड़े यीशु पर नजर करें। सलीब को अपनी जाती जिंदगी और अपने घर का सेंटर रखें। माँ परेशान है, सलीब की तरफ देखें। बाप परेशान है, सलीब की तरफ देखें। बच्चों को सिखाएं, बेटा कोई बात नहीं, आज हालात ऐसे हैं, ये हालात बदल जाएंगे, क्योंकि यीशु हमारे खानदान का सेंटर है और वो हमें इत्मीनान देता है। तो सारे डर, सारे मसले ताड़े बिल्कुल अपने ना जगह पे आ जाएंगे। मैं नहीं कह रही फौरन हल हो जाएंगे, हल होने टाइम लग सकता है, मगर आपका एटीट्यूड बदल जाएगा। जो मसीही सलीब पर नजर रखता है, जिसके अंदर खुदा का इत्मीनान होता है, वो मरू नहीं करता। और जे 100 रुपया भी है ना, वो तानू राजी नजर आएगा। वो कहेगा खुदावन का शुक्र है, खुदावन सब पूरा करने वाला है, खुदावन सारी साड़ी जरूरतां दी फिक्र करता है। ते जिस शख्स का सेंटर सलीब नहीं ना, वो बड़ा भी कमांदा है। और जरा जा कोई पेट्रोल की कीमत उत्ते थल्ले हो जाए ना, तो कहेगा हाँ जी बस इत्थे ते ना पूरी नहीं पैंदी, इत्थे ते इंजे, इत्थे ते ओंजे, बस की करिए लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं एटीट्यूड किस तरह से बदल जाता है। और साढ़े लिए इस मुल्क च की है जी, असी ते कलीयत हाँ, नो 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 नो। ऐसी गुफ्तगू एक जिंदा मसीही की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह का इत्मीनान हमारे अंदर से बहता है। हमारे अंदर इसकी ओवरलोडिंग होनी चाहिए, कुछ भी क्यों ना हो जाए। जैसे अरबी क्रिश्चियंस थे, उनको मार देते थे, आरों में चीरे गए, उन्हें कहते थे यीशु का इनकार करो, वो कहते थे नो वे। कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम कभी भी यीशु का इनकार नहीं करेंगे। उनके सामने उनके बच्चों को मार दिया जाता था, उनके दिल में यीशु का इत्मीनान था। उन्हें पता था हम इस दुनिया में दुख उठाते हैं, मगर खातिर जमा रखनी है, क्योंकि जो कोई गालिब आएगा खुदावंद से जिंदगी का ताज पाएगा। मेरे अजीजों, ये मुश्किलात वक्ती है, मगर वो जलाल अब भी है, वो जलाल जो यीशु के बाइस हमें मिलने को है। तो ये यीशु जो बीच में आकर खड़ा हो गया और उनको सलामती का पैगाम दिया, और वो लिखा है कि बड़े खुश हो गए। तीसरी बात जो वहां पर उस कमरे में हुई, वहां लिखा है यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है। यानी सलामती के साथ एक काम जुड़ा हुआ है। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, उसी तरह मैं तुम्हें भेजता हूं। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा रूहुल कुद्स लो। खुदावंद की सलामती खौफ को दूर करती है। खुदावंद की सलामती इंसान को खुशी बख्शती है। और तीसरी बात जो ये टेक्स्ट हमें बता रहा है, खुदावंद की सलामती इंसान को खुदा के कलाम और गवाही के लिए तैयार करती है। ये सलामती कायम रहती
आती है रूहुल कुद्स के वसीले। यीशु ने कहा, उन पर फूंका और कहा रूहुल कुद्स लो, और जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूं। अब इसको लोग पता है कैसे समझते हैं, ਐਵੇਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ या वो जो फुल टाइम मिनिस्ट्री च है खुदा उनको भेजता है। ऐसी कोई बात कलाम मुकद्दस में इस तरह से नहीं लिखी हुई। हर वो शख्स जो बेटे को जानता है अपने अंदर क्या रखता है, गवाही रखता है, और जो कोई गवाही रखता है वो गवाह होने के लिए बुलाया गया है। यीशु कहता है जैसे बाप ने मुझे भेजा, तो बाप ने उसे कैसे भेजा और किस काम के लिए भेजा। अगर आप लूका की इंजील उसका 4 बाब निकालें और निकालें, गिरजा इज नॉट अ प्लेस टू रिलैक्स जी। हम यहाँ पर कलाम सीखने आते हैं, कलाम से भरने आते हैं। लूका 4 बाब, यीशु मसीह हैकल में मौजूद था और उसे यशाया का सहीफा दिया गया कि वो पढ़े, और यीशु ने वो मकाम निकाला जहां पर लिखा था 17वीं आयत से, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। यीशु मसीह ने जब ये सहीफा पढ़ा तो उसने कहा ये बातें मेरी बाबत लिखी गई हैं, आज ये सहीफा तुम्हारे सामने पूरा हो गया। यीशु मसीह की खिदमत क्या थी? क्या वो अमीरों के पास जा जाके बैठता था? नो नो नो, सादा लोगों के पास, आम चरवाहों के पास, कैदियों के पास, मच्छरों के पास। वो कहता है मुझे इसलिए बुलाया गया कि कैदियों को रिहाई बख्शूं। सिर्फ हम उन्हें कैदी समझते हैं जो जेलों में हैं, ऐसा नहीं है। हर वो शख्स जो यीशु मसीह को नहीं जानता मेरे अजीजों, वो गुनाह की कैद में है, वो तारीकी की कैद में है, और यीशु उनको वहां से निकालने के लिए आया। और वो इसलिए आया कि जो अंधे हैं, जो देख नहीं सकते, वो देखें। उसने शिफा का काम किया, वो हाथ रखता था, दुआ करता था, मौजज़े हो जाते थे। मगर वो उन अंधों के लिए भी आया जो आंखें रखते हुए भी देखते नहीं। और वो कह रहा है जैसे बाप ने मुझे भेजा, जो मेरी मिनिस्ट्री है, वैसे ही मैं किसे भेजता हूं? तुम्हें भेजता हूं। तो आप जो मसीह यीशु में बुलाए गए हैं, आप भी भेजे हुए हैं। तो FGA चर्च नवा दिल्ली, आप लोग भी बुलाए गए हैं कि वही काम करें जो यीशु मसीह करता था। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप फुल टाइम पादरी हों, जरूरी नहीं कि आप जो है वो कोई फुल टाइम मिनिस्ट्री करते हों। आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप नर्स हैं, आप कारोबार करते हैं, मजदूरी करते हैं, आप जहां कहीं हैं वहां पर खुदा की बादशाही का काम कर सकते हैं। मुबारक है वो मसीही जिसमें से मसीह नजर आए। वरना मसीहियां जो जे कोई होर शायद नजर आ रही है ना, तो फिर वो गली बाती मसीही है। ऐसी मसीहत के लिए आप बुलाए नहीं गए। ये कोई मजहबी बातें नहीं है। संडे उठे गिरजे आ गए, गिरजा खत्म होया, वापस अपनी जिंदगी में चले गए। बाकी 6 दिन यीशु मसीह का कोई अता पता कोई नहीं। 6 दिन यीशु मसीह कमरे तो पार, मेरी जिंदगी तो पार। जे जी मैं गिरजे आया, हालेलुया, यीशु मसीह जिंदगी में विचकार। यीशु मसीह कोई लिखती दिखती शय नहीं है।
यीशु मसीह खुदावंद है, वो पाक है, वो जिंदा है, वो आपके लिए और मेरे लिए सलीब पर गया है। हम उसके खून से खरीदे गए लोग हैं। तो मुबारक है वो लोग जो जिंदा जिंदगी गुजारते हैं। अगर अंदर जिंदगी कोई नहीं ना तो बाहर भी बंदा एवी डगया टिठिया मरिया नजर आता है। मुबारक वो क्रिश्चियन है कि जब वो लोगों के साथ अक्सरियत के साथ बैठ के गुफ्तगू करे तो लोग कहें यार इनकी गलबात मुख्तलिफ है, इनू रुपये पैसे ना कम दे दो, कोई हेर फेर नहीं, असी कभी इन्हां दे मुंह चो कोई गल नहीं सुनी, इन्हां दी खवातीन नाल गल कर लो, इन्हां दे घर दा इंतजाम देख लो, शानदार। ये सब कुछ मसीह की गवाही को रिफ्लेक्ट करता है। इससे होता क्या है, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर आप डायरेक्ट अंजील सुनाने में मुश्किल है। हम डायरेक्ट बाइबल पकड़ के किसी को नहीं दे सकते, मगर जब हमारे किरदार से मुनादी होगी, गुफ्तगू से पता चलेगा कि मुख्तलिफ लोग ने वो खुद मसीहियों के बाइस मसीह की तरफ खींचे चले आएंगे। वो पूछेंगे अच्छा ये आपकी दुकान इतवार को बंद होती है, इसकी क्या वजह है? आप बताएंगे जी हम चर्च जाते हैं। अच्छा आपके बिजनेस में लॉस हो गया है, फिर भी ਅਸੀਂ कभी ਤੁਹਾਨੂੰ इंज ना उम्मीद ਜਾਂ नहीं देखा, तो फौरन क्रिश्चियन बिजनेसमैन क्या कहेगा, मैं इसलिए ना उम्मीद नहीं हूं क्योंकि जिस पर मैं ईमान रखता हूं, जो मेरी उम्मीद है वो अब तक जिंदा है। तो जब तक यीशु मसीह जिंदा है मैं ना उम्मीद नहीं हो सकता। जब वो आपके घर आए, खवातीन के पास आए, वो देखें ये अपने बच्चों को बताते हैं ऐसे नहीं करना बेटा, ऐसे करना है, हम इतने बजे दुआ करते हैं, तो पूछेंगे अच्छा आप अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं? मौका मिल गया ना तुसी फौरन दसोगे। हम बच्चों को 10 काम सिखाते हैं, उसमें लिखा है तो अपने माँ बाप की इज्जत कर, उम्र दराज होती है, अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जहां पर उसे चलना है। ये सारी बातें आप उन्हें बता सकते हैं कि हम अंजील से सीखते हैं। लो ना तुसी उन्होंने कोई दावत दी है ना कोई होर गलबात, मगर सारी गल ताड़ी अमली गवाही तो उन्होंने तक पहुंच गई। अगला काम रूहुल कुद्स का है, वो जब चाहेगा, जब वक्त मुनासिब होगा, उनके दिल को बदल देगा। तो मेरे अजीजों, आज सुबह 3 बातें हमने कलामे मुकद्दस के इस हिस्से में से सीखी हैं। पहली बात क्या सीखी है कि जहां पर यीशु मसीह आ जाता है वहां से डर जाता रहता है। सो खुदा की सलामती डर को निकाल देती है। दूसरी बात हमने क्या सीखी है, जहां पर खुदा की सलामती आ जाती है वहां पर खुशी आ जाती है। हालात कैसे ही क्यों ना हो, हम खुश रहते हैं। और तीसरी बात जो आज सुबह हमने इक्तबास में से सीखी है, खुदावंद की सलामती हमें खुदा की बादशाही के काम के लिए तैयार करती है। तो जो शख्स अपने अंदर खुदा के शालोम को रखता है, जिसका सेंटर यीशु मसीह है, जिसके खानदान का सेंटर यीशु मसीह है, हालात आ जाएं, तूफान आ जाए, कश्तियां डोलने लग जाए, उसका दिल नहीं डोलता, क्योंकि उसकी कश्ती में मसीह ऐन बीच में खड़ा रहता है। और जब तक वो जिंदा है हमारी उम्मीद कायम है, हम कभी नहीं डोलेंगे, हम सदा के लिए फतहयाब ही रहेंगे। हालेलुया। तो क्या आप बतौर कलीसिया अपने किरदार से यीशु की गवाही दे सकते हैं? कितने दे सकते हैं? यही चीज खुदावंद हमसे चाहता है कि जब उसका बेटा हमारे लिए भेजा गया
तो उसने हमें भी भेजा कि लोगों के लिए उम्मीद का कलाम है। इस इलाके में तब्दीली आ जाएगी जब आपके किरदार से खुदा का इत्मीनान बहने लगेगा। उसके लिए जरूरी है कि यीशु को सेंटर में जिंदगी के आने दें। अपनी आंखें बंद करें और अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी का सेंटर अगर रुपया पैसा हो गया है, फिक्रें हो गई हैं, बच्चे हो गए हैं, तो आज उस सेंटर को खाली कर दो। उसे कहें खुदा मैं माफी चाहता हूँ, अगर मेरी कोई और चीज मेरी जिंदगी का सेंटर बन गई है इसको मेरे दिल से हटा दो। मेरी जिंदगी का सेंटर यीशु मसीह होना चाहिए, यीशु की सलीब होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो आप अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं। यीशु को अपने दिल का जिंदगी का सेंटर करना चाहते हैं, खड़े हो जाएं। हम दुआ करना चाहते हैं ताकि ये कलीसिया इस इलाके में तब्दीली का वसीला हो। लोग कहें मसीही अजीब और अच्छे लोग हैं, इन लोगों से बात करें जिंदगी में इत्मीनान आ जाता है, इनसे बात करें फिक्रें जाती रहती हैं, इनके साथ कारोबार करें हमारी कारोबार में बरकत आ जाती है। ये इस कदर बाबरकत लोग हैं। अपनी जुबानें खोलें, खुदावंद से कहें खुदावंद मेरी जिंदगी में आओ, मेरी जिंदगी का सेंटर हो जाओ। खुदावंद का शालोम। अगर आपके बच्चे आपके आसपास हैं उन पर हाथ रख सकते हैं। आपके बच्चों की जिंदगी में खुदावंद का शालोम सरायत करें, खुदावंद का शालोम। हालेलुया। रबा शीतंदरा नमः ग्लोरी 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 हमारा सीतरा मासोया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने इर्द गिर्द के भाइयों की भी दुआएं शुरू करें। इस कलीसिया में खुदावंद का इत्मीनान बहने लगे, वो इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है। रबा शीतंदरा मासोया हमरो सीतंदरा मासोया। ओ खुदावंद तू जो इत्मीनान का सर चश्मा है, तू जो कादर मुतलिक है, सब कुछ कर सकता है। इस कलीसिया पर आसमान को खोल दे, हालात बदलना शुरू हो, खानदानों में आजादी आना शुरू हो और लोग गैर कफोकुल फिक्र तौर से यीशु मसीह का तजर्बा करें। हालेलुया। रोजगार के मौके बख्श हमारा खुदा कि लोग तरक्की करते जाएं, फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। लॉर्ड थैंक यू सो मच।